Hello students, today we are going to take a second chapter of history, that is growth of nationalism. In this chapter the syllabus is factors leading to the growth of nationalism, that is the economic exploitation, repressive colonial policies, socio-religious reform movements, that is a brief mention of contribution of Rajaram Mohan Roy and Jyotirao Phule, and role of the press. Foundation of the Indian National Congress, that is the Indian National Association founded by Surendranath Banerjee, and the East India Association, Dadabhai Naoroji, as precursors. And immediate objective of the Indian National Congress, that is the first two sessions of the president and their president, should be mentioned. So in this chapter we are basically going to study about these things only. So one of the most distinguishing features of the second half of the 19th century was the birth of national awakening in India. It originated from the concept of nationalism and right of self-determination initiated by the French Revolution, the socio-religious reform movements in India, as an offshoot of modernization introduced by the British in India as a reaction of the Indians to the British colonial policies. The political awareness generated by these trends gave birth to various political associations. This trend culminated in the establishment of the Indian National Congress in 1885, which marked the formal beginning of the organized national movement in India. Okay, तो ये nationalism क्या होता है? What is nationalism? It is a strong feeling of belonging to a country, है ना, to a particular region. So nationalism के कई कारण होते हैं. यहाँ पर इंडिया में नेशनलिज्म इसलिए आया कि द ब्रिटिशर्स हैड इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न एजुकेशन. हमें इंग्लिश की तरफ इंट्रोड्यूस किया था, वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ इंट्रोड्यूस किया था, और हमने इसमें हिस्ट्री में पढ़ा द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच में जो रिवॉल्ट हुआ इन द 1800s, इसके बारे में जब हमको जानकारी मिली कि नेशन स्टेट्स हो सकता है, डेमोक्रेटिक स्टेट्स हो सकते हैं, तो इससे हम प्रभावित होकर हमारे भी मन में एक देशभक्ति की भावना जागी कि हम एक पर्टिकुलर देश को बिलोंग करते हैं. और इसी प्रकार से जो ब्रिटिशर्स ने कुछ और रिफॉर्म मूवमेंट्स इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, जो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे, तो उसके वजह से छोटे छोटे पहले कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गए थे, और आगे चल के ये सब इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनने में मदद की थी. इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बन गई थी. फैक्टर्स प्रमोटिंग टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. Nationalism refers to the feeling of oneness and common consciousness that emerges when people living in a common territory share the same historical, political, cultural background, have the same language, cultural values and consider themselves as one nation. तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल डेफिनेशन जो दिया है नेशनलिज्म का, ये बोलता है कि यहाँ पर क्या है, वी शुड पीपल लिविंग इन अ कॉमन टेरिटरी, एक कॉमन इलाके में रहने वाले के जो टेरिटरी है, दे शेयर अ कॉमन हिस्ट्री, अ सेम हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, हैव द सेम लैंग्वेज, कल्चरल वैल्यूज़ एंड कंसिडर देमसेल्फ एज वन नेशन. तो इस डेफिनेशन के हिसाब से तो इंडिया एक नेशन होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत अलग है. अलग अलग रीजन में अलग अलग राजाओं ने राज किया है. हाँ, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर राजस्थान में राणा प्रताप, फिर नॉर्थ इंडिया में अकबर बादशाह. तो यहाँ तो फिर अलग अलग हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री हो गई है. हम अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा बोलते हैं, मराठी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, लेकिन हमें एक बाइंड करने वाला एक कॉमन फैक्टर था, और वो था ब्रिटिश की एट्रोसिटीज़. ब्रिटिश ने हमारे साथ में जो अत्याचार किए, ये एक कॉमन फैक्टर हो गया. इसीलिए हम एक नेशन बन के उभरे. दो इंडिया हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री गोइंग बैक टू मैनी सेंचुरीज, it was never one nation and comprised many kingdoms. There were times when vast portions of the Indian subcontinent came under the rule of one empire, but the loyalty of the people was towards a particular king or a kingdom. The modern feeling of nationalism was lagging among them. It emerged during the British rule mainly as a reaction of the British rule and the clash of the interests of the British people with those of the Indian people with those of the British. As we have read in the previous chapter, Indians resisted the British rule from its very beginning, but this resistance was localized and scattered. It was undertaken by the deposed chieftains
their descendants and relations, zamindars, ex-soldiers and officials of the Indian state. The culmination of traditional opposition to British rule came with the first war of independence. Although it failed to achieve its objective, it inspired in the Indians to resist the foreign power and make a determined struggle for the country's freedom. तो जैसे मैंने बताया कि इंडिया का बहुत ही पुराना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी इंडिया में एक नेशनल फीलिंग नहीं आया था. कभी कभी ऐसा भी हुआ कि पूरा इंडिया के ऊपर या बहुत बड़े हिस्से के ऊपर किसी एक राज्य या उसे एक राज्य बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोकल लोग थे वह अपने ही राज्य को ज़्यादा पसंद करते थे. इसीलिए वो नेशनल फीलिंग यहाँ पर नहीं आ रही थी. नेशनल फीलिंग कब आई? जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अत्याचार करना चालू कर दिया. ब्रिटिशर्स के अत्याचार की वजह से और जो उनका जो लैंग्वेज फैक्टर्स था, ब्रिटिश ने इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया, मॉडर्न रेलवेज़, रोडवेज़, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बनाए, और इसकी वजह से क्या हो गया, लोगों का जो मूवमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा आसान हो गया. लोग एक दूसरे से मिलने लगे और उनके समझ में आया कि कॉमन प्रॉब्लम हर किसी को है और कॉमन प्रॉब्लम का जो मेन सूत्र है, जो मेन कारण है वो ब्रिटिश है. तो हमें एकजुट होना पड़ेगा. तब जाके हमारे मन में एक नेशनल फीलिंग आई थी. ब्रिटिशर्स को तो हम पहले से ही उनको रेसिस्ट करते थे, अंग्रेज़ तो हमें पहले से ही पसंद नहीं थे. वॉर ऑफ 1857 में जो सिपाही म्यूटनी हुई थी, जो सिपाहियों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, इससे पहले भी छोटे छोटे जो राजा थे, जो छोटे छोटे चिफ्टन्स थे, वो विद्रोह कर चुके थे. लेकिन जो वॉर ऑफ 1857 था ये बहुत बड़े पैमाने में हुआ था. इसमें ना केवल सिपाही लोगों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिए थे, बल्कि आम आदमी भी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ हो गए थे. ये बात अलग है कि जो वॉर ऑफ 1857 बहुत जल्दी को सप्रेस कर लिया गया, उसे कंट्रोल कर लिया गया. लेकिन इससे हमें एक बात तो तय हुई कि हम ब्रिटिश को रेसिस्ट कर सकते हैं, और ये बात आगे चल के हमें आज़ादी दिलाने वाली थी. Thus, the very nature of the foreign rule resulted in nationalistic sentiments rising among the Indians and produced conditions conducive for the rise of growth of a powerful national movement. The second half of the 19th century witnessed the emergence of national political consciousness and strong feelings of nationalism. There were many factors which contributed to the growth of nationalism in India. These include the following. तो चैप्टर अभी यहाँ से स्टार्ट होता है. जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखे जाए तो यहाँ से आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. तो व्हाट वर द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया? तो पहला कारण है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. ऐसे आपको कम से कम 3 से 4 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट किया था. देयर वर मेनी फैक्टर्स दैट अरोज अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल. Economic exploitation was the most important among them. The Indian realized that the general aim of the British policies in India was to promote their own interest at the cost of welfare of Indians. The economic discontent of different sections of the society was as follows. तो ऐसे तो बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से हम ब्रिटिश रूल से नाराज़ थे और हम उसको अपोज करना चाहते थे. लेकिन इससे सबसे प्रमुख रीज़न, सबसे मेन या सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था. ये इंडियन इस बात को रियलाइज़ करने लगे. इंडियंस को समझ में आ गया था कि जो ब्रिटिशर्स थे वह इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट कर रहे थे, और यहाँ का जो वेल्थ है, यहाँ का वेल्थ लेकर वो इंग्लैंड ले जा रहे थे. और इंडिया में भले ही उनका राज चल रहा था, लेकिन वो राजा जैसे बिहेव नहीं कर रहे थे. प्रजा को प्रजा नहीं मानते हुए प्रजा को अपना गुलाम मानने लगे और इंडिया के लिए कुछ नहीं करते थे. मैक्सिमम जितना बेनिफिट हो सके वो अपने देश के लिए, अपने मदर लैंड के लिए वो कर रहे थे. तो ये मेन कारण था जो हम अंग्रेज़ों से नाराज़ थे. किस प्रकार से वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे? सबसे पहले तो हम पीजेंट्स वाली बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं. दे वर द मेन विक्टिम्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़. द गवर्नमेंट टुक अवे अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ land revenue and other taxes. These exorbitant taxes led to the peasant into the clutches of landlords and money lenders. तो जो किसान था सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किसान को हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, जो किसान बेचारा उगाता था
उनसे तो बहुत बड़ा हिस्सा एज वो लैंड रेवेन्यू या टैक्सेस के रूप में उनसे ले लिया करते थे। जब किसान ये टैक्स दे नहीं पाता, हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई या बारिश नहीं हुई और अनाज फेल हो गया तो उसे टैक्स तो देना ही पड़ता था। और जब किसान टैक्स नहीं दे पाता था तो मजबूरन वो किसी मनी लेंडर के पास जाकर उसे पैसे उधार लेता था, और जब ये पैसे उस मनी लेंडर को पैसे वापस नहीं लौटा पाता था तो उसकी ज़मीन मनी लेंडर हड़प लेता था। तो इस प्रकार से किसान अंग्रेज़ों से बहुत ही खफा था, बहुत ही नाराज़ था। दूसरे नंबर पे आते हैं तो आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन। The British economic policies were against the interest of the Indian trade and industry. The English East India Company used its political power to destroy Indian handicrafts and industry in India. India became a source of raw material for the industries of Britain and a market for its finished products. This policy crippled the artisans and the craftsmen, and they were devoid of this source of livelihood. ब्रिटिशर्स आने से पहले, ब्रिटिशर्स इंडिया में कंट्रोल करने से पहले इंडिया एक बहुत ही प्रॉस्परिंग ट्रेडिंग कंट्री था। इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, इंडिया के जो टेक्सटाइल थे, वो पूरे वर्ल्ड में, ख़ास करके इंडिया से सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया से फिर बाकी वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होते थे। तो इंडिया का जो टेक्सटाइल था, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था, ये बहुत ही प्रसिद्ध था और बहुत डिमांड में था। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो ब्रिटिशर्स ने अपने देश के हित में, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, वहाँ पर मशीन से स्पिनिंग जेनी नाम की एक मशीन बनी थी जिससे कपड़े बुने जाते थे, बड़े पैमाने पर बुने जाते थे। तो इन कपड़ों के लिए उन रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे रॉ कॉटन चाहिए था, उनको इंडिगो चाहिए था। तो रॉ कॉटन और इंडिगो इंडिया में अच्छी तरह से उग सकता है, ट्रॉपिकल कंट्री में उग सकता है, इसलिए यहाँ पर वो मैक्सिमम से मैक्सिमम यही अनाज या यही क्रॉप उगवाना चाहते थे जहाँ जिससे उनको फ़ायदा हो। और इसके लिए भी उन्होंने बीच में एक मिडिलमैन रखा, दलाल रखा, और ये जो इंडिगो और कॉटन था वो केवल और केवल ब्रिटिश मिडिलमैन को ही बेच सकते थे, जिसकी वजह से इंडियन का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था उसका रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास में रॉ मटेरियल नहीं आने लगे। ऊपर से ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जितना भी इंडियन गुड्स था, जो भी गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे उसके ऊपर बहुत हैवी ड्यूटी लगा दिए, हैवी टैक्सेस लगा दिए। तो अपने जो कपड़े हैं, अपने जो हैंडीक्राफ्ट्स है, वो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी महंगे हो गए। एट द सेम टाइम उनके जो फिनिश प्रोडक्ट्स थे यहाँ पे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, तो उनके जो सामान जो यहाँ पर बिकता था वो सस्ते में बिकते थे। यानी जो खादी कपड़ा जो था वह ब्रिटिश के फैक्ट्री में बने हुए अच्छे मटेरियल के कपड़े से महंगा पड़ जाता था। खादी कपड़ा ब्रिटिशर्स के फिनिश गुड से, फिनिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री से काफ़ी महंगा पड़ जाता था। तो लोग इंडियन मार्केट में भी इंडियन कपड़े बिकने कम हो गए, फॉरेन कपड़े यहाँ पर बिकने लगे। लोग सस्ता माल और अच्छा सुंदर टिकाऊ माल खरीदने लगे, जैसा आज चाइना कर रहा है वैसा ब्रिटिशर्स ने पहले कर चुका था। तो इस प्रकार से अपना जो आर्टिसंस थे और जो क्राफ्ट्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, उनके साथ में बहुत ही बुरा हुआ। उनकी नौकरियां चले गई, उनका जो व्यापार था उसमें बहुत ही गिरावट उनको देखना पड़ा, जिसकी वजह से क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस ये भी ब्रिटिशर्स से काफ़ी नाराज़ थे। तीसरे नंबर पे आए थे द वर्किंग क्लास। तो the growth of the modern industry led to the birth of a new socio class in India, the working class. They were exploited by the factory owners who were generally Englishmen. Although they formed a small section of the population, they represented a new social outlook. The outlook and interest were very broad, covering whole of India. Though the factories were located in cities, all these factors made the political thinking far more significant than the numerical strength. तो फैक्ट्री वर्कर्स, हालांकि फैक्ट्री बहुत ही कम फैक्ट्रीज थे इंडिया में, ब्रिटिशर्स ने तो ज़्यादा फैक्ट्रीज इंडिया में बनाए नहीं, लेकिन जो भी फैक्ट्रीज उन्होंने बनाए, यहाँ के जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, ये एक प्रकार के इनका जो आउटलुक था वो पूरे इंडिया को लेकर था। तो इसलिए उनका जो जब ये ब्रिटिश मोस्टली जो फैक्ट्री ओनर्स थे, टाटा को छोड़कर और किर्लोस्कर को छोड़कर ऐसे कुछ चंद फैक्ट्रीज थे जो इंडियंस के थे, लेकिन जो मेजर फैक्ट्रीज थे, बाकी जो मेजर फैक्ट्रीज थे वो ब्रिटिशर्स के थे। ब्रिटिश मैन, जो इंग्लिश मैन थे, वो यहाँ के मालक थे और ये इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे। इनके एक्सप्लॉइटेशन की वजह से क्या हुआ, इन जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वह भी अंग्रेज़ों से नाराज़ चले। द एजुकेटेड इंडियंस
The only employment available to the educated Indians was government services, in which competition was high and chances of promotion were bleak. They had hoped that British capitalism would help to develop India's productive forces, as it had done for the Britishers. Instead, they found that the British policies were keeping India economically backward. Thus, all sections of the society felt that their economic salvation lay in the freeing themselves from the British rule. To achieve this objective, the Indian people had to come together on a national platform. In the process, the spirit of nationalism received a powerful stimulus. So the educated यानी जो educated Indians था उनको क्या लगा, अगर हम पढ़ लिख लेंगे तो हमको जॉब मिलेगा, और उस वक़्त केवल गवर्नमेंट जॉब्स ही अवेलेबल थे. जो भी पढ़ लिख लेता था उसको गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाती थी. हाँ, और लेकिन यहाँ पर भी इनका जो इतना कंपटीशन, इतना स्टिफ कंपटीशन था कि बहुत ही रेयर चांसेस थे कि इंडियंस को कोई बड़े पोस्ट पर नौकरी मिल जाए. हाँ, तो इनको क्या लगा, जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनको लगा कि अगर कैपिटलिज्म हो जाएगा, अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, इंडस्ट्री अगर प्राइवेट बनेंगी तो इसमें इंडियंस का फ़ायदा होगा. लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा था. मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा जो हो रहा था वो ब्रिटिश पॉलिसी के फेवर में था, ब्रिटिशर्स के फेवर में था. इसलिए जितने भी सेक्शंस थे, यानी पीजेंट हो गए, फार्मर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, और वर्किंग क्लास हो गए, और एजुकेटेड इंडियंस हो गए, ये सभी के सभी ब्रिटिश के खिलाफ हो गए. तो एक ऐसी बुनियाद बन गई जहाँ पर एक नेशनलिस्टिक फीलिंग, एक देश भक्ति की भावना जागने की काफ़ी उम्मीदें यहाँ पर दिखाई दे रही थी. दूसरा मेन कारण, जैसा ये पहला हमने पॉइंट किसके बारे में डिस्कस किया, ये केवल और केवल हमने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में ही इस टॉपिक पे भी तक का डिस्कस किया है. दूसरा कारण था द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया का दूसरा कारण था रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़. तो जो पॉलिसीज़ जो ब्रिटिशर्स यूज़ कर रहे थे वो इंडियन को रिप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, इंडियन के ऊपर अत्याचार करने की कोशिश कर रहे थे. द नेचर ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ओवर इंडिया हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स अमंग द इंडियंस. द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड इंडिया टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट and therefore followed such repressive policies so as to make India subservient to the needs of Britain. तो ब्रिटिश का तो मेन मकसद क्या था, ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनी क्यों बनाई थी, कि ताकि उनके जो मदरलैंड है, उनका जो देश है वो ज़्यादा तरक्की करे. ये इंडिया की भलाई तो चाहते नहीं थे, तो उन्होंने ऐसे पॉलिसीज़ बनाए जिससे इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा समय तक का उनका गुलाम बना रहे, उनको रिप्रेसिव करने की कोशिश किए. These policies became the major barrier to India's economic, social, cultural, intellectual, and political development. Some of these repressive policies, especially those followed by Lord Lytton, Viceroy of India, from 1876 and 1880, acted as a catalyst for the growth of nationalist movement in India. These included the following. तो जो लॉर्ड लाइटन का जो दौर था 1876 से 1880, ये सबसे बुरा दौर था इंडिया के लिए. तो जैसे वो कहावत मैं शायद पहले भी बोल चुका हूँ, किसी को इतना मत डराओ कि डर ख़त्म हो जाए, तो इंडिया का डर ख़त्म हो गया. ये इंडिया को बहुत डराने की कोशिश इंडियंस को बहुत डराने की कोशिश कर रहे थे, बहुत धमकाने की कोशिश कर रहे थे. हाँ, लॉर्ड लाइटन तो ऐसे ऐसे रूल्स पास कर रहे थे जिससे इंडियंस शांत हो जाए. लेकिन ये तो आप किसी चिंगारी में हवा देना हो जैसा हो गया. आग लगी थी, उसको बुझाने की कोशिश में आप उसमें फूंक रहे हो, लेकिन पता लगा कि फूंकने से वो आग और से लग गई. तो वैसे ही देश भावना की भक्ति, देश एक मूवमेंट दिल में ऐसी जागी कि उसको फिर अंग्रेज रोक नहीं पाए. लॉर्ड लाइटन ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रैंड दिल्ली दरबार इन 1877 to proclaim Queen Victoria as the Empress of India. Lakhs of rupees were spent on the event, but nothing was done for Indians who were in the grip of famine. तो 1877 में ये बहुत ही बुरा दौर था, ना केवल इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए. क्योंकि 1877 में इंडिया, चाइना और आसपास के जो साउथ एशियन कंट्रीज़ थे वहाँ पर सूखा पड़ गया था, नहीं अकाल छा गया था. लोगों के पास में खाने के लिए अनाज नहीं था. हाँ, ये एक्चुअली ये जो सूखा जो था ये एक्चुअली इट वाज मोर मैन मेड देन नेचुरल. ये
इंसान की वजह से सूखा आया था। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड लाइटन ने क्या किया, एक बहुत बड़ा दरबार यानी एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया। जो इंडिया के जितने भी क्राउन प्रिंस थे, राजा राजकुमार थे इंडिया के और आसपास के और इंग्लैंड के, सबको इंडिया में दिल्ली में एक बहुत बड़ी दरबार लगाई, ये बताने के लिए कि इंडिया की जो महारानी है वो, ब्रिटिश की जो महारानी है वो इंडिया की महारानी है। तो इसमें लाखों रुपए खर्च किए गए। उस ज़माने में लाखों मतलब ये तो बहुत बड़ी कीमत रकम हो जाती थी। लाखों रुपए खर्च किया केवल एक ग्रैंड दरबार रखने के लिए। और उस वक़्त इंडिया में जो महामारी चल रही थी, एक प्रकार की बीमारी थी, प्लेग की बीमारी आ गई थी, भूख से लोग मर रहे थे, इनके लिए लॉर्ड लाइटन ने कुछ भी नहीं किया। तो इस पॉलिसी को देखकर कि जो अंग्रेज़ है वह केवल अपनी वाहवाही करने में लगे हुए, अपनी ही बढ़ावा करने के लगे और यहाँ के लोगों के बारे में उनको बिल्कुल परवाह नहीं है, ये बात तो सबके समझ में आ गई थी। लॉर्ड लाइटन इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 एंड द इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। तो दो ऐसे एक्ट लॉर्ड लाइटन ने इंट्रोड्यूस किया था। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जो लोकल लैंग्वेज में हम ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं लिख सकते थे। अगर कुछ भी लिखा गया तो जो प्रेस का जो मालिक है, जो एडिटर है, उसको जेल में डाल दिया जाएगा देशद्रोह के आरोप में। और प्रेस का जो प्रिंटिंग मटेरियल्स है, प्रिंटिंग मशीन्स है, वो सारे के सारे कन्फिस्केट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको ले लेगी। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। और इंडियन आर्म्स एक्ट में जो इंडियंस थे उनको हथियार साथ में रखने की अनुमति नहीं थी, हथियार बनाने की अनुमति नहीं थी, जबकि जो यूरोपियंस थे वो हथियार अपने पास रख भी सकते थे और हथियार बना भी सकते थे। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट फोरबेड वर्नाकुलर पेपर्स, वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज वाले, टू पब्लिश एनी मटेरियल दैट माइट एक्साइट फीलिंग्स ऑफ डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस एक्ट वॉज नॉट applicable to English newspapers. In 1882, this act was repealed by Lord Ripon. The Indian Arms Act of 1878 made it a criminal offence for Indians to carry arms without license. This act was not applicable to the Britishers. The maximum age limit for the Indian Civil Service examination was reduced from 21 years to 19 years, thus making it difficult for the Indians to compete for it. तो हम जो इंडियंस हैं पढ़ाई में बहुत एक्सपर्ट हैं, रट्टा मारने में हम बहुत एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पर जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जैसा आज जो IAS एग्जामिनेशन थे, इसमें बहुत सारे इंडियंस बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे और क्वालिफाई भी होने लगे। तो किस प्रकार से ऑफिशियल पोस्ट केवल ब्रिटिशर्स के लिए रखा जाए, इसके ऊपर वो विचार करने लगे, सोचने लगे। तो एक कमज़ोरी हम में दिखाई दी कि हमें इंग्लिश बहुत देरी से समझ में आती है। हम काफ़ी देर से इंग्लिश पढ़ना चालू करते थे उस ज़माने में। तो उस ज़माने में जो था 5th क्लास यानी 5 साल का जो लड़का है वह इंग्लिश नहीं बोलता था। 1st क्लास से लेकर 5th क्लास तक का बच्चे को लोकल लैंग्वेज में उनकी शिक्षा होती थी। और 6th 7th 8th 9th 10th और 11th में उनको इंग्लिश सिखाया जाता था। 6th में उनको इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया जाता था, ABCD इंट्रोड्यूस करते थे। तो जो एडमिशन जो होता था बच्चे का 1st क्लास में, जब 5 साल का था तब वो 1st क्लास में आता था। 5 यानी अगर हम 5 यानी 4th क्लास तक का गिनते हैं तो 5 + 4 तो 9 साल, 10 साल का तो बच्चा 10 साल में वो इंग्लिश का ABCD लिखना और पढ़ना चालू करता था। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो IAS एग्जामिनेशन थी उसका जो एज लिमिट था उसको 21 ईयर्स से नीचे लाकर 19 ईयर्स में कर दिए। तो यहाँ पर क्लियर बेनिफिट था कि जो नेचुरल जो इंग्लिश है, जिसका लैंग्वेज मदर टंग इंग्लिश है, उसका इसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो वह उनका मेन मकसद क्या था कि इंडियंस को इंग्लिश नहीं आएंगी और वो IAS एग्जामिनेशन में अपीयर ही नहीं होंगे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रहेगा वह ब्रिटिश के कैंडिडेट जो है वो IAS ऑफिसर बन जाएंगे। The import duties on British textile were removed. It proved harmful for the Indian industry. तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ यानी वहाँ के जो फॉरेन के जो कंपनीज़ थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऊपर दबाव डालकर यहाँ पर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी वो हटा दिया।
तो इससे क्या हुआ, जो इंडियन मार्केट, कम से कम इंडियन मार्केट इंडियंस के लिए बचा हुआ था, अब यह मार्केट में भी इंडिया के कपड़े, इंडिया के गुड्स वगैरह नहीं बिक रहे थे, तो इंडियन इंडस्ट्री के लिए सबसे बुरी बात थी। सर C.P. Ilbert, the law member of the Viceroy's Council, prepared a bill popularly known as the Ilbert Bill in 1883. The bill, which was introduced by the Viceroy Lord Ripon, sought to be abolished judicial disqualification based on race discrimination. This was resented by the British and they started a defense association to defend the special privileges. This reaction provoked counter agitation by educated Indians. The government ultimately withdrew the bill and enacted a more moderate measure which vested the power of trying Europeans to a session judge and a district magistrate who might be an Indian. This bill made it clear to the Indians that justice and fair play could not be expected where the interests of the European community were involved. तो द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इस बिल को सर इल्बर्ट, C.P. इल्बर्ट, ये एक लॉ मेंबर थे वाइसरॉयज काउंसिल में। इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया। उन्हें लगा कि जो लॉर्ड लाइटन ने द बिल विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वाइसरॉय लॉर्ड रिपन सॉट टू अबॉलिश जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन। हाँ, जो सर C.P. इल्बर्ट, ये जो लॉ मेंबर थे, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था। उसमें यह टर्म्स एंड कंडीशन थे कि इंडियन जजेस को भी ब्रिटिशर्स के जो नागरिक है या यूरोपियन नागरिक को न्याय देने का अधिकार दे देना चाहिए। यानी दे शुड बी गिवन द अथॉरिटी टू प्रिसीड ओवर द सिटिंग्स ऑफ अ यूरोपियन। जबकि पहले कैसा था, जो यूरोपीय लोग थे, अगर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी होती थी तो उसके लिए केवल एक यूरोपियन जज उसका जज बनता था। जो भी केस चल रहा था उसका जज जो रहेगा वो यूरोपियन जज रहेगा। लेकिन C.P. इल्बर्ट ने कहा कि ये तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गए, इंडियंस भी काफ़ी क्वालिफाइड है, इंडियन जजेस भी क्वालिफाइड है, उन्होंने वही कानून पढ़ा है जो यूरोपियन जजेस पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये बिल को पास किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन एक इन द फेवर ऑफ इंडिया में इसको पास किया था। लेकिन एक ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी या एक ऐसा कम्युनिटी बन गया था जो इस बिल को विरोध करने लगा, और जब कोई ये बिल को विरोध करने लगा तो इस बिल को विड्रॉ कर लिया गया। जो लॉर्ड रिपन ने या सर C.P. इल्बर्ट ने जो फॉरवर्ड किए थे उस बिल को उन्होंने वापस ले लिया। तो इससे ये ब्रिटिशर्स का दो चेहरा दिखाई दे दिया कि वह इंडियंस को सेकेंड ग्रेड नागरिक समझते हैं, इंडियन को बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहते हैं। These repressive policies of the British proved a stimulus to political agitation against the Britishers and quickened the pace of Indian nationalism. तीसरा पॉइंट है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, है ना। पहला क्या था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा था रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज, और तीसरा है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। The social religious reform movement of the 19th century was a great pioneer were great pioneers of Indian nationalism. The impact of Western education, which led to a rational, humanitarian and scientific approach to life, made the educated Indian realize the need to reform their religion and society. तो सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फूले, ये एक प्रकार के ना केवल सोशल रिफॉर्मर्स थे, ये एक पायनियर्स ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। हम कह सकते हैं कि इंडियंस के मन में एक देश होने की जो भावना है कि हम कोई धर्म को बिलोंग नहीं करते, हम कोई जाति को बिलोंग नहीं करते, हम एक देशवासी है, ये मिट्टी हमारी मातृभूमि है। तो ये देशवासियों के मन में इस बात को डालने में सबसे पहल अगर किसी ने की है तो वह है सोशल रिफॉर्मर्स ने। द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन विच लेड टू अ रैशनल, ह्यूमैनिटेरियन एंड साइंटिफिक अप्रोच ऑफ लाइफ मेड द एजुकेटेड इंडियंस रियलाइज द नीड टू रिफॉर्म देयर रिलीजन एंड सोसाइटी। तो क्योंकि अभी ये वेस्टर्न एजुकेशन में जो काफ़ी एक लिबरल एजुकेशन था, वेस्टर्न एजुकेशन में भेदभाव जनरली नहीं होते थे,
कोई ऊंची जाति का नहीं, कोई नीची जाति का नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबको बराबर दर्जा दिया जाता। तो इससे वो प्रभावित होकर अपने देश में भी ऐसे ही सोसाइटी क्रिएट करने की इच्छा रखते थे। दे फेल्ट दैट द पाथ टू प्रोग्रेस ले इन द एक्सेप्टेंस ऑफ द बेस्ट of the East and the West. The result was the birth of socio-religious reform movements touching almost every segment of the Indian society. तो इनका मानना क्या था, जो ईस्ट है और जो वेस्ट है, वेस्ट यानी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, उनमें उनका जो सबसे बेहतरीन कल्चर है उसे हमने इंडिया में लाना चाहिए, और हमारा जो सबसे बेहतरीन कल्चर है उसको हमने रिटेन करना चाहिए, और जो हमें नीचे ले जाता है उसको हमने छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो इंडिया का सबसे बेस्ट है और यूरोप का सबसे बेस्ट है उसको मिला करके वो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे। द रिजल्ट वॉज द बर्थ ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स टचिंग ऑलमोस्ट एवरी सेगमेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इन द सोशल स्पीयर these movements worked for the abolition of caste system, child marriages, dowry system, parda system, sati and infanticide. They launched a crusade against social and legal inequalities. In religious sphere, these reform movements combated religious superstition, attacked idolatry, polytheism and hereditary priesthood. These movements fought for individual liberty and social equality. तो वेस्टर्न एजुकेशन का प्रभाव क्या हुआ कि हमारे देश में जैसा कुछ ऐसे सिस्टम्स थे जो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही खौफनाक थे, जैसा सती सिस्टम। सती सिस्टम में क्या होता था, जो विधवा होती थी उसे अपने पति के चिता के ऊपर बैठ जाना पड़ता था और जिंदा जल जाना पड़ता था। तो कई बार तो ये होता था कि हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज की जो प्रथा थी, बहुत ही छोटी उम्र में शादी हो जाया करती थी, और खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर दूल्हा जवानी में ही मर जाता है तो उसकी जो वाइफ होती है उसे सती बनना पड़ता था। तो ये सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए और चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश करने के लिए फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब बच्चा जब जन्म लेता है, अगर वो फीमेल होता था तो उसको दूध के बड़े से पतोले में डालकर उसको डुबाकर मार देते थे। तो ये सब जो दर्दनाक या खौफनाक प्रैक्टिसेस थी, इसका उन्होंने विरोध किया। प्रोमिनेंट रिफॉर्म मूवमेंट वर ब्रह्मो समाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद एंड सत्यशोधक समाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फूले। Rajaram Mohan Roy was one of the greatest social and religious reformers of the 19th century. He wanted to do away with the religious and social evils which were prevalent in Bengal at that time. In 1828, he founded the Brahmo Samaj, which was later renamed Brahmo Samaj. So he founded the Brahmo Sabha. Brahmo Sabha का बाद में नाम हुआ Brahmo Samaj. The Brahmo Samaj believed in monotheism or worship of one God. It condemned idol worship and laid emphasis on prayer, meditation, charity, morality, and strengthened the bonds of unity between men of all religions and creed. तो राजाराम मोहन रॉय ये 19th सेंचुरी के सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर्स थे, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर थे। इन्होंने ब्रह्मो समाज फाउंड किया था 1828 में। ब्रह्मो समाज का पहला नाम था ब्रह्मो सभा। तो ब्रह्मो सभा आगे चल के ब्रह्मो समाज का नाम लिया। ब्रह्मो समाज में क्या था कि आप केवल एक ही गॉड में विश्वास करोगे, आप कोई मूर्ति पूजा नहीं करोगे, और आपका मेन मकसद रहेगा प्रार्थना करो, मेडिटेशन करो, दान पुण्य करो और जो इंसान है उसको उसका धर्म ना देखते हुए उसे इंसान के रूप में ही देखे। Rajaram Mohan Roy was against the rigidity of the caste system. He started a campaign for the abolition of sati and parda system, condemned polygamy, discouraged child marriages, and advocated the right of widow to remarry. तो राजाराम मोहन रॉय ये कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। जो पंडित जो होते, केवल जैसे कोई बड़े बड़े मंदिरों में जो पुजारी होते वो किसी एक परिवार के ही पुजारी होते, तो वो इसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि देश में कोई कास्ट सिस्टम ना रहे। वो सती के खिलाफ थे, वो पर्दा के सिस्टम के खिलाफ थे।
पॉलीगैमी मतलब एक आदमी बहुत सारी बीवियां रख सकता था, वो इसके खिलाफ थे। उन्होंने चाइल्ड मैरिज को कंडेम किया, उसके खिलाफ थे। और विडो री मैरिज, जो सती अगर होती थी तो लोगों ने सवाल पूछा, अगर सती नहीं होगी तो फिर विडो का विधवा कहाँ जाएगी, अपने पिता के यहाँ जाएगी या अपने पति के घर में रहेगी। तो राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि वो दोबारा भी तो शादी कर सकती है, सो ही प्रमोटेड विडो री मैरिजेस। तो उस ज़माने में सुनने के लिए बड़ा अजीब लगता था, लेकिन आज तो एक कॉमन सी बात है। लेकिन पहले ये सोचना कि विधवा की भी शादी हो सकती है, ये एक प्रकार से ब्लास्फेमी थी, ये एक प्रकार से बहुत ही अजीब सी बात थी। It was because of the efforts made by Rajaram Mohan Roy that William Bentinck, the Governor General of India, passed a law in 1829 making the practice of sati illegal and punishable by law. He also protested against restrictions of freedom of press. In the words of Rabindranath Tagore, Rajaram Mohan Roy inaugurated the modern age of India. He was the father of Indian Renaissance and the prophet of Indian nationalism. तो इंडियन रिनायंस मतलब अ न्यू अवेकनिंग, अ न्यू बिगिनिंग ऑफ इंडिया। तो ऐसा माना जाता है कि राजा राम मोहन राय ये हमारे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया हैं। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले वॉज एन अर्बन एजुकेटेड मेंबर ऑफ अ सो कॉल्ड लो कास्ट. His education and personal experience had made him critical of Hindu religion and customs. In 1854, he established a school for untouchables and started a private orphanage for the widows. He wanted to liberate the depressed class and make them aware of their rights by educating them. He founded the Satya Sodhak Samaj in 1873 with the aim of securing social justice for weaker section of the society. He pioneered the widow remarriage movement in Maharashtra and worked for education of women. The socio-religious reform movements contributed to the onset of Indian nationalism in many ways. तो ज्योतिराव फूले ये उस ज़माने में हम जो कहते थे कि जो लोअर कास्ट है, उस सो कॉल्ड लोअर कास्ट में इनका जन्म हुआ, लेकिन फिर भी ये पढ़ लिख लिए और पढ़ने के बाद, पढ़ लिखने जाने के बाद वो हिंदू रिलीजन और कस्टम्स के खिलाफ हो गए, उनको क्रिटिसाइज़ करने लगे। और 1854 में ही उन्होंने स्कूल्स खोल दिया अनटचेबल्स के लिए। उस ज़माने में केवल जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, जो राज परिवार के लोग थे या ठाकुर बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, या फिर जो ब्राह्मण लोग थे, केवल वही स्कूल जा सकते थे। तो ज्योतिबा फूले ने गरीबों के लिए भी और अनटचेबल्स के लिए भी स्कूल खोल दिया, हाँ, 1854 में। और ही वांटेड टू लिबरेट द डिप्रेस क्लास, और उनको अपने राइट्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में उनको जानकारी देना चाहते थे। तो ही फाउंडेड द सत्य शोधक समाज इन 1873। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले के जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स क्या थे? The social religious reform movements contributed to the onset of Indian nationalism in the following ways. Swami Dayanand and Swami Vivekananda proclaimed the superiority of Indian culture and civilization. The reformers condemned untouchability and the caste system. The ideas of brotherhood and equality attracted the so-called lower castes. The reformers taught people not to ignore the importance of women who could participate in the national movement. They protested against the British domination of India. Swami Dayanand Saraswati was the first to use the word Swaraj and to raise the slogan India for the Indians. The reform movements drew the inspiration from Indian culture, heritage, and promoted the feeling of pan-Indianism and a spirit of nationalism. The reform movement created a consciousness of a new society devoid of the privileges based on the कास्ट। तो इसमें इस सेक्शन में से केवल आपसे राजाराम मोहन रॉय के बारे में और ज्योतिबा फूले के बारे में, इनके बारे में ही पूछेंगे। इस सेक्शन में इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। तो हमने जो अभी जो स्वामी दयानंद सरस्वती वगैरह के बारे में जो पढ़ा है वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। रोल ऑफ द प्रेस लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century. Some of the prominent newspapers were the Amrit Bazar Patrika, the Bengali, the Tribune, the Pioneer, the Times of India, the Hindu, and the Statesman in English. Many other newspapers, magazines,
in the vernacular language were also brought out. These newspapers played a significant role in the developing of strong national sentiments among the Indians. It did so in the following manner. तो the role of press in awakening the national feeling इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो इसमें जो था, जो मेन जो पेपर्स थे वो अमृत बाज़ार पत्रिका थी, द बंगाली था, ट्रिब्यून था, द पायनर था, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू एंड द स्टेट्समैन, ये सब इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स थे. इसके अलावा अलग अलग वर्नाक्युलर प्रेस में, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में भी पेपर छपते थे. तो किस प्रकार से ये पेपर ने, किस प्रकार से न्यूज़ ने लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगाई. इट वॉज थ्रू द प्रेस दैट द मैसेज ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड मॉडल लिबरल आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, होम रूल एंड इंडिपेंडेंस स्प्रेड अमंग द पीपल. हाँ, तो प्रेस के द्वारा ही ये जो पेट्रियोटिज्म का फीलिंग जो है, लिबरल आइडियाज़ की फीलिंग, आज़ादी के बारे में, ये लोगों के मन में पेपर और प्रेस के द्वारा ये काफ़ी प्रभाव किया. जिस प्रकार से आजकल सोशल मीडिया होता है, जिस प्रकार से आजकल इंटरनेट होता है, या व्हाट्सएप होता है, या फेसबुक, ट्विटर, ये जो होता है, उस प्रकार उस ज़माने में न्यूज़पेपर का ये काम था, मैसेज या न्यूज़ लोगों में पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना. The press carried on daily criticism of the unjust policies of the British government in India and exposed the true nature of the British rule in India. तो प्रेस क्या करती थी, ब्रिटिश की जो असली चेहरा वो लोगों के सामने लेके आती थी. किस प्रकार से वो इंडियंस को सप्रेस कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने साथ में इनइक्वालिटीज़ हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, ये लोगों के सामने लाकर रखते थे. इट मेड पॉसिबल द एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल मूवमेंट्स. तो पेपर के द्वारा ये अपने विचार जो है वो एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर सकते थे, उसके ऊपर चर्चा कर सकते थे, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट जो है वो पूरे इंडिया में वो आराम से फैला सकते थे. इट मेड इंडियंस अवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. दिस अवेयरनेस हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड एंड शेप देयर ओन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स. तो इंडियंस जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ के बाहर क्या हो रहा है, इंडिया के बाहर क्या चल रहा है, और उसके हिसाब से वहाँ के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे किस प्रकार से लोग अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, फ्रांस में क्या हुआ, जर्मनी में क्या हुआ, इटली में क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी. और उसके हिसाब से वो जब कहते हैं कि जब किंग लुइस द 16 का जब खुद उनके लोगों ने उसकी हत्या की, तो यहाँ पर तो फॉरेनर्स है. तो इस प्रकार से जो मूवमेंट जो है वो न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल रहा लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए. आज हम यहाँ पर रुकते हैं. इसके आगे का चैप्टर हम अगले क्लास में करेंगे.